العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، خاص طور پر شب جمعہ اور جمعہ کا دن ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع بھی شب جمعہ ہوا کرتے ہیں اور اس میں ڈھیروں دعائیں کی جاتی ہیں، درود پاک پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ذہنی آزمائش سیزن 7 کا چھٹا مقابلہ ہے اور آج ایک ایسے صوبے سے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جن کی آمد کی مجھے تو بہت خوشی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس شعبے کے، اس صوبے کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم اتنا زیادہ مدنی چینل پر نہیں دیکھ پاتے، مگر آج خصوصی طور پر ہم نے یوں سمجھیے کہ جب ہم شہروں کو ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو ہم نے ہمارے پیارے صوبے بلوچستان کو بھی یاد رکھا، ان وہاں کے اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ بلایا۔ تو آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے اسلامی بھائی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ وہ شہر ہے جس کو سردار آباد کہتے ہیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں سردار آباد کس کو کہا جاتا ہے؟ فیصل آباد کو۔ پاکستان کا مانچسٹر جس شہر کو کہا جاتا ہے، بہت ساری صنعتیں جہاں پر موجود ہیں، کاروباری مرکز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کاموں کا مرکز بھی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ سردار آباد، فیصل آباد اور ساتھ ساتھ بلوچستان، صوبہ بلوچستان سے آئے ہوئے اسلامی بھائی جو کہ بلوچستان کے غالباً مختلف شہروں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب تعارف لیں گے تو مزید پتہ چل جائے گا۔ آئیے دونوں طرف کی ٹیموں کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیزن 7 ذہنی آزمائش کا چھٹا مقابلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں طرف کے اسنائپر سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ ماشاء اللہ، دائیں طرف ہمارے سردار آباد، فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں اور بائیں طرف صوبہ بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور امید ہے اس میں بلوچی بھی ہوں گے، مزید معلومات بھی لیں گے۔ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ سردار آباد کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنا تعارف بھی کرائیے، اپنا شعبہ بھی بتائیے۔ احمد رضا عطاری، بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ 8 سیمسٹر، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سردار آباد فیصل آباد۔ چلیں جناب، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں۔ دوسرے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے۔ محمد عاطف عطاری، جامعۃ المدینہ، ماشاءاللہ، دورہ حدیث شریف۔ ماشاءاللہ، دورہ حدیث شریف سے تعلق ہے اور عاطف ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو غالباً سیزن 3 ذہنی آزمائش کے فائنل میں یہ ونر ہوئے تھے اور الحمدللہ مدینہ منورہ کا ٹکٹ بھی انہوں نے جیتا تھا اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی انہوں نے لی تھی۔ اب دیکھیں یہ اپنی سردار آباد، فیصل آباد کو کہاں لے جاتے ہیں۔ سیزن 3 میں ہی میرا خیال ہے کہ ہم نے شہروں کا مقابلہ کیا تھا اور اب دوبارہ پہلی بار یوں سمجھے سیکنڈ ٹائم ذہنی آزمائش میں سیزن 7 میں پھر شہروں کی باری آئی ہے، ورنہ ہم شعبہ جات اور دیگر یوں سمجھے ڈپارٹمنٹس میں مقابلہ کراتے رہے۔ اب دیکھیں جب دوبارہ شہروں کی باری آئی ہے تو پہلی بار جب شہروں کا مقابلہ ہوا تھا تو سردار آباد مقابلے میں پہلے نمبر پر رہے تھے۔ اس بار ان شہروں کے مقابلے میں سردار آباد کی پہلی ٹیم کی پہلی حاضری ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ جی تیسرے اسلامی بھائی۔ محمد شہباز عطاری، سردار آباد، بی ایس سی آنر ایگری سائنسز 4 سیمسٹر۔ اچھا، آپ بھی ایگریکلچر یونیورسٹی سے؟ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل اچھا، آباد۔ 2 ایگریکلچر یونیورسٹی سے اسلامی بھائی ہیں اور ایک دورہ حدیث کے طالب علم ہیں۔ بلوچستان چلتے ہیں جناب، اپنا نام بتائیے۔ محمد عیسیٰ عطاری، بلوچستان ڈیرہ اللہ یار سے میری ذمہ داری امامت کی ہے۔ اچھا، ڈیرہ اللہ یار میں امام ہیں، آپ بلوچی ہیں؟ سندھی ہوں۔ اچھا، سندھی، بلوچستان کے اس علاقے ڈیرہ اللہ یار میں سندھ کے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ جی عبداللہ عطاری، سوئی، بلوچستان، امام۔ اچھا، بلوچستان سوئی سے امام صاحب بھی آئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک ڈیرہ اللہ یار کے امام صاحب ہیں، ایک سوئی کے امام صاحب ہیں۔ جی تیسرے اسلامی بھائی۔ محمد اویس عطاری، ڈیرہ اللہ یار، ڈیرہ بی ایس سی ایگریکلچر آنرس۔ چلیں جناب، ڈیرہ اللہ یار سے بھی ایگریکلچر کے بی ایس سی کیے ہوئے اسلامی بھائی ہیں۔ تو جناب دونوں طرف ایگریکلچر آج سمجھ لیں ہمیں زراعت کے درمیان لگتا رہنا پڑے گا۔ آپ پہلے پتہ ہوتا تو کچھ عشر کے
सवालात आपके लिए तैयार कर लेते। बहरहाल बलूचिस्तान का मुकाबला सरदाराबाद फैसलाबाद से। बापू कुछ तासुरात आपके पास मदनी चैनल के नाज़रीन के होंगे? जी, कुछ नियतें हैं, मदनी तासुरात हैं। रायबंड मुस्तफ़ाबाद पंजाब पाकिस्तान से हमारे भाई अबरार अतारी कहते हैं, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 7 बहुत प्यारा है। अल्लाह ज़वजल मदनी चैनल को ता क़यामत शाद व आबाद रखे, आमीन। आप लोग आमीन कहते रहिए, कोई ऐसी बात आए तो आमीन। डेरा गाजी खान पाकिस्तान से हमारे भाई अजमल अत्तारी कहते हैं कि सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह ताला इसको नज़र बस से महफूज रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। 8 मकाम कश्मीर पाकिस्तान से मोहम्मद रफ़ीक भाई कहते हैं कि माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 7 बहुत पसंद है, दुआओं का तलबगार हूँ। बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान से हमारे एक इस्लामी भाई कहते हैं कि ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं बहुत शौक़ से देखता हूँ। अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल इनको खुश रखे, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया। और साथ साथ इन्होंने ये बात भी लिखी है कि आप इनकी दुआ भी कीजिएगा। प्लीज़ मेरा ये मैसेज ज़हनी आज़माइश सिलसिले में ज़रूर शामिल कीजिएगा। चलें जनाब, हमने इनकी फरमाइश पूरी कर दी है। पहले तो आपकी नेक ख्वाहिशात का और तारीफ़ों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि अल्लाह करीम हमें अपना पसंदीदा बंदा भी बना दे और अपनी रज़ा वाले काम करने वाला बनाए। अब हमने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है तो आप भी हमारी इल्तिजा पूरी कर लीजिए कि मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत करके सफ़र करके हमें भी मैसेज कर दीजिए कि हमने ज़हनी आज़माइश सिलसिले में हमारा, देखिए अगर ये आज तय हो जाए ना बापू, क्या ख्याल है कि जिस जिसका मैसेज पढ़ें और जिस जिसकी कॉल मदनी चैनल में सिलसिले में सुनाई जाए, उनको शुक्राने में खुद ही अगर इज़हार कर दे कि मेरा मैसेज अगर पढ़कर सुनाया गया तो मैं 3 दिन मदनी काफिले में फला तारीख को सफर करूंगा। तो हम कोशिश करेंगे, हो सकता है वो भी सैकड़ों में आ जाएं, तो हम कोशिश करेंगे उनमें से मैसेजेस पढ़ देंगे। बिल्कुल इसी तरह जिसकी कॉल ऑन ईयर हो जाए या कॉल में ही वो इज़हार कर दें कि मेरी कॉल इंशाल्लाह ऑन ईयर होगी तो मैं इतने दिन के मदनी काफिले में फला तारीख के साथ अगर नियत कर लें तो इंशाल्लाह। इसमें भी हमारी लालच क्या है, देखें ना, अगर आप मदनी काफिले में सफ़र करेंगे हमें क्या मिल जाना है, आप ही को बहुत कुछ मिलना है, बहुत सारी नेकियां मिलनी है, बहुत सारा इल्म दीन मिलना है। हाँ, हमें ये लालच है कि हमें भी इंशाल्लाह उस सवाब में कुछ हिस्सा मिल जाएगा। और फिर ये है ना कि कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब एक अच्छी नियत का इजहार करेगा तो कॉल वाले जो कॉल्स को सिखाएंगे, SMS वाले SMS करने वाले को सिखाएंगे। इसी तरह बाबुल मदीना से हमारे महरोज मदनी अत्तारी कहते हैं कि सिलसिला ज़हनी आज़माइश, वाह क्या कहना है, बस मदीना 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 ही कह सकता हूँ। और हमारे अब्दुल हबीब भाई के सेट पर मज़ीद मदीने के 26 चांद लग गए। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये फैमिली सिलसिला है जिसे सब घर वाले ही शौक़ से देखते हैं। हमारी दुआ तो ये है कि सारी ही टीमें जीतें और मदीना देखें। सारी मजलिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ भी बड़ी प्यारी दी है। अल्लाह करे कि हम सब मदीने शरीफ मिलकर जाएं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का। बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करने की। आज सवाल थोड़ा सा मुश्किल है मगर इनाम बापू कोई अच्छा सा दे दें, कोई तगड़ा इनाम दे दें आप। तो फिर आप ही बताएं। क्या बात है। अच्छा। ऐसा करते हैं कि इंशाअल्लाह पहला ही इनाम जो है गिलाफ काबा के मुबारक धागे जो हैं वो देते हैं और मदीने की तस्वीर भी इसमें शामिल कर लें। अरे मदीने शरीफ की क्या बात है। चलें जरा, अब ये 2 चीज़ें एक साथ जा रही हैं और सवाल चूँकि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जो माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे सुनने वाले हैं, जामियतुल मदीना के तलबा हैं, मुताला करने वाले हैं, वो तो मेरा ख्याल है फ़ौरन जवाब दे देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुताहरात जो हमारी मुक़द्दस माएँ हैं उनमें से उम्मुल मसाकीन किनको कहा जाता है? अज़वाजे मुताहरात में से उम्मुल मसाकीन किनको कहा जाता है? जनाब हाथ तो उठें, कुछ देखें, मदनी काफिले के मुसाफिर बनते हैं या हमारा जवाब ठीक देते हैं? चलिए कि ज़ियारत भी करवा दें मदीना। चलें जनाब, ज़ियारत भी करवाएं भाई। तबर्रुक मदीना तबर्रुक मक्का दोनों जा रहा है, सुभान अल्लाह। चलें। अरे ये तो बहुत सारे इनाम ले जाते हैं भाई। अच्छा। हाँ जी। अस्सलामु अलैकुम वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जवाब दुरुस्त है। ये मदनी मुज़ाकरे में वापस से सुना। क्या बात है। देखिए ये है मदनी मुज़ाकरे की बहार। अगर मदनी मुज़ाकरे पाबंदी से सुनते रहें, देखते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इल्म दीन का ख़जाना है जो हाथ आएगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन शुरू करते हैं सिलसिला ज़हनी आज़माइश। बलूचिस्तान और फैसलाबाद सरदाराबाद वालों के दरमियान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हुए तलबा, मस्जिदों के इमाम भी हैं और दौरे हदीस के तलबा भी हैं। देखते हैं मुकाबला आगे कैसे बढ़ता है, किस तरह ये मुकाबला होगा, किन किन सेगमेंट्स के साथ होगा। आइए आपको वो दिखाते हैं। किन किन मरहलों के तहत ये मुकाबला होने जा रहा है। पहला सेगमेंट इल्म नूर है।
دوسرا سیگمنٹ عشق کے بول، تیسرا مرحلہ مدنی کسوٹی، پھر سنیں گے قرآنی معلومات، پھر سمجھائیں گے مگر اشاروں سے، اور پھر سفر کرنا ہے مگر اکیلے۔ دیکھنا ہے ان 6 سیگمنٹس میں یہ مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سردار آباد فیصل آباد ایک ایسا مقابلہ ہوا تھا کہ جو مجھے آج بھی یاد ہے، پاب المدینہ کراچی اور سردار آباد فیصل آباد، اور یہ سیزن 3 کا فائنل تھا، اور اس فائنل کے آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوا تھا کہ سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی اس مقابلے میں جیتے تھے۔ بڑا رقت انگیز منظر تھا، باب المدینہ کے طلباء چھوٹے چھوٹے مدنی منع تھے، وہ اشکبار ہو گئے تھے، اور پھر الحمدللہ ہمیں ڈھیروں کالز آئی تھیں، اور اس کے بعد کمال یہ ہوا تھا کہ فائنل جیتنے اور ہارنے یعنی پیچھے رہ جانے والی دونوں ٹیموں کو مدینہ منورہ کے ٹکٹ پیش کیے گئے تھے، اور ماشاءاللہ وہ دونوں ٹیموں نے اللہ کی مہربانی سے مدینہ منورہ دیکھا، عمرے کی سعادت حاصل کی۔ اب دیکھنا ہے کہ سردار آباد فیصل آباد والے اس تاریخ کو رقم کرتے ہیں یا آج میدان بلوچستان والے آگے لے کر جاتے ہیں۔ ڈھیروں دعائیں لے کر امیدیں آئے ہوں گے، اور امید یہ ہے کہ ان کے شہر کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ باب المدینہ سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال، یہ شاید مدنی چینل کے ناظرین پہلی بار سنیں گے۔ یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں۔ یمین غموس بڑا مشکل نام ہے جناب، آج اس کا مطلب بھی سن لیجئے۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی معاملے پر قسم کھانا، مثال کے طور پر موجودہ زمانہ ہو یا گزرا ہوا زمانہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو پتہ ہے کہ زید گھر پر نہیں ہے اور وہ کہہ دیتا زید گھر پر ہے، تو یہ یمین غموس کہلائے گی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جی، غموس یہ ہے کہ کسی یمین پہلے کسے کہتے ہیں؟ یمین کہتے ہیں قسم کو، اور یمین غموس یہ قسم کی ایک قسم ہے۔ یمین غموس کا معنی یہ ہے کہ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر گزر گیا کوئی معاملہ یا موجودہ معاملہ ہے، اس پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، جس کو ہم نارملی جھوٹی قسم کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے، یعنی غموس کھانے والا سخت گناہگار ہوا، استغفار توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، پہلا جواب درست دے کر سبز لائٹ بھی جلی ہے بنچ پر، 2 نمبر بھی ملے ہیں سردار آباد والوں کو، بلوچستان والوں کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سلسلے میں پہلی بلوچستان کی ٹیم نے شرکت کی ہے، ان سے پہلا سوال۔ یمین ہی کی بات ہو رہی ہے، قسم ہی کی بات ہو رہی ہے، بتائیے یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں؟ مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی جائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی قسم میں تمہارے گھر کل ضرور آؤں گا، دوسرے دن نہیں آیا تو قسم ٹوٹ گئی، یمین منعقدہ ہوئی۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر کفارہ دینا ہوگا، بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا۔ جناب، یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی، مثلا یوں کہا رب عز و جل کی قسم کل میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، شاندار اسٹارٹ لیا ہے بلوچستان والوں نے۔ باری ہے سردار آباد والوں کی۔ لقطہ اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے، یہ لقطہ کس صورت میں اٹھا لینا مستحب ہے؟ کمال یہ ہے کہ لقطہ نارملی نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن کیا کوئی ایسی بھی قسم صورت ہے کہ لقطہ اٹھا لینا مستحب ہے؟ اگر اٹھانے والے کو یقین ہے کہ اگر اٹھاؤں گا نہیں تو ضائع ہو جائے گا، اور پھر اٹھا لیتا اٹھانا مستحب ہے، اور اس تک پہنچا بھی دیتے تھے۔ آپ کی کوئی آج رات کی ٹرین تو نہیں ہے؟ نہیں۔ تھوڑا آرام سے جواب دیں جی، فرمائیے، جلدی فرمائیے، ٹائم ویسے آپ کا ختم ہو۔ ہاں، لقطہ مستحب اس وقت ہے کہ جب اس کے ضائع ہونے کا خوف ہو، اور اٹھانے والا جو ہے نا وہ مالک تک پہنچا دینے کا، اس کو جو ہے وہ کہ میں مالک تک پہنچا دوں گا، اٹھا لینا مستحب ہے۔ پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے۔ بہر شریعت
10वें حصے میں اس کے احکام بھی موجود ہیں, ضرور پڑھنے چاہیے. بہرحال جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. اب لقطے ہی کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے تو لقطہ کس صورت میں اٹھانا مستحب بیان کیا, کس صورت میں لقطہ اٹھانا ناجائز اور بمنزلہ غصب کے ہوگا. اگر یہ غالب ہو کہ اس کے مالک تک نہیں پہنچاؤں گا تو اپنے لیے اٹھانا تو ناجائز ہے, اپنے لیے اٹھانا حرام ہے اور بمنزلہ غضب کے ہے. اگر زن غالب ہو کہ مالک کو نہ دوں گا تو اب اٹھانا ناجائز ہے, اور اپنے لیے اٹھا لے کہ چلو بھائی گری ہوئی چیز ملی ہے اٹھا لو, تو یہ حرام ہے. اور اس صورت میں بمنزلہ غصب کے ہے, یعنی جس کے مال کو غصب کر لیا جاتا ہے, اپنی طرف کر لیا جاتا ہے, یا کسی کے مال کو جس کو کہتے ہیں نا ہڑپ کر لیا جاتا ہے, یہ اس طرح کے غصب کے معنی میں آتا ہے. تو یقیناً یہ نہیں کرنا چاہیے, جیسے ہم نے سنا حرام ہے. جواب ان کا درست ہے. جناب باری ہے سردار آباد والوں کی. اچھا شگون یا برا شگون کسے کہتے ہیں؟ اچھا شگون کہتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھ کے شگون لینا, نیک شخص سے یا کوئی نیک شخص کے دیکھ کے اس سے اچھا شگون لینا. اور برا شگون کہتے ہیں کسی دن یا کسی مہینے یا کسی شخص کو دیکھ لینا, بلی گزرے اس کو کہنا کہ اب آج کا دن کیسا گزرے گا, اس کو برا شگون کہتے ہیں. اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا, اور یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو. اور اگر برا ہو تو بد شگونی ہے. یہ اس اچھے شگون اور برے شگون کی تعریف ہے. جواب ان کا درست ہے. اب کسی شخص کو منحوس قرار دینے کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کسی کو کہہ دیتے ہیں کسی شخص کو منحوس قرار دینے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس پر تہمت دھرنے کا بھی گناہ ہوتا ہے. دونوں جہنم میں لے جانے والے کام. اللہ اللہ, کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے, اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور یہ جو ہے سمجھنے والی بات ہے کہ آج لوگ کسی کو منحوس کہہ دیتے ہیں. یہ کس قدر دل آزاری والا کام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی لگتا ہے مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں. ہم بھی تھوڑی تیاری کر لیتے ہیں. دائیں طرف والے سردار آباد والوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے بلوچستان والوں کے ساتھ ہو جائیں, اور ہر صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ جناب باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا کس کی سنت ہے؟ سنت انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے, سنت پیغمبری. جی, نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب نظر بد کی جناب آج اتار بھی لیجئے گا, نظر آج دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو کیا فرمایا؟ آج ہو سکتا ہے بہت سارے گھروں میں بچے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے خوبصورت ننھے منھے, سب کو پیارے لگتے ہیں. اب ذرا سنیے کہ ہمارے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. سنیے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی آج یہ عمل کر لیجئے گا. جی اب بتائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت بچے کو دیکھا اور فرمایا اس کی تھوڑی پر سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. ہاں, اس کی تھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. جواب یہ بھی درست ہے. آج ہمارے ساتھ عابد باپو ہیں. باپو ہاں میں نے دیکھا ہے آپ یہ لگاتے رہتے ہیں یا بتاتے رہتے ہیں, کچھ بتائیں نا یہ کیا تل اور یہ کیا ہے معاملہ؟ اب تل لگاتے ہیں نا, اب امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ہی پتہ چلا تھا. اب جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا پیارا سا مدنی منا ہے, اب یہاں پہ تل لگائیں یا یہاں پہ کوئی یہاں پہ تل لگائیں اور مزید خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے, صحیح جگہ ہے, وہ تھوڑی کے نیچے لگائیں. اچھا, تل نظر نہ آئے. اور وہ تل بیسیکلی لگایا اس لیے جا رہا ہے کہ نظر نہ لگے. تو وہ واقعی ایسا تل لگاتے ہیں کہ خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے تعویذ تاریہ بھی حاصل کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے لیے کیا وعید ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, جتنے مرد حضرات اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں, ہر صورت میں جمعہ پڑھنا ہے جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. جو نہیں پڑھتے سستی کی وجہ سے, آئیے غور سے سنیے. جی, جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے, دل پر مہر لگا دی جاتی ہے, اور جس سے اس کے نیکیاں کرنا اس پر بھاری اور گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے.
मिरातुल मनाजी में है, जो सुस्ती से जुमा अदा न करे उसके दिल पर गफलत की मोहर लग जाएगी, जिसकी वजह से उनके दिल गुनाह पर दिलेर होंगे और नेकियों में सुस्त। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब दिलों पे मोहर लगने वाला मामला है, जो लोग जुमा वक्त पर अदा नहीं करते, जुम्मे को भी कज़ा करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बारी है बलूचिस्तान के इस्लामी भाइयों की, और आपसे भी 5वां सवाल। अब तक सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं हमारे बलूचिस्तान वालों ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर जुमे के बारे में गौर से सुनिए, कि जुमा में एक घड़ी है जिसे बंदा मोमिन नहीं पाता कि उसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल से खैर मांगे, मगर अल्लाह उसे वो जरूर देता है। बताएं वो कौन सी घड़ी है? सुभान अल्लाह, कबूलियत की घड़ियां हैं जुमे के दिन। अब गौर से सुनिए वो कौन सी घड़ी है। वो कबूलियत की घड़ी है खुतबे के दरमियान या मगरिब से कुछ पहले। वो दोनों खुतबों के दरमियान में वो घड़ी आती है। मुफ्ती अहमद यारखानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गालिबन वो दोनों खुतबों के दरमियान में जो वक्फ़ा होता है, इसमें जब इमाम एक खुतबा देकर बैठ जाता है दरमियान में, इस वक्फ़े में अगर दिल ही दिल में कोई दुआ मांगे और सूरज डूब रहा हो उस वक्त अगर कोई दुआ मांगे, उस वक्त भी ये दुआ कबूल होती है। ये दुआ की कबूलियत के औकात है। सुभान अल्लाह। मिरातुल मनाजी में है, वो सात कबूलियत दुआ की है। रात में रोज़ाना वो सात आती है, मगर दिनों में सिर्फ जुमे के दिन। और वो क्या वक्त है यकीनन नहीं मालूम कि वो सात कब है। गालिब ये है कि दो खुतबों के दरमियान या मगरिब से कुछ पहले ये वक्त आएगा इंशाअल्लाह। इन दोनों ही वक्त दुआ मांग ली जाए कि जब इमाम दोनों जुमों के खुतबों के दरमियान बैठते हैं, दिल ही दिल में, ज़बान से नहीं, दिल ही दिल में दुआ मांग लें जो आपकी नेक जायज़ ख्वाहिशात हों। और फिर मगरिब से थोड़ी देर पहले जुमा के दिन यानी असर के बाद हो सके तो ये वक्त मस्जिद में ही गुजार लिया जाए तो क्या बात है मदीने की। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब क्या मालूम कि दोनों इन्हीं सातों में दुआ करके आए हों ज़हनी आजमाइश के लिए। कबूलियत दुआ का वक्त है। अब चलते हैं हम अपने यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से। क्या हाजरीन से एक और सवाल कर लिया जाए? चलें जनाब, क्या तोहफा देंगे बापू? इस पे ज्यादा आवाज आती है, सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी बारी है ना। चलें जनाब, कौन सी किताब तोहफे में दे रहे हैं? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बहुत ही प्यारी किताब नेकी की दावत। क्या बात है, नेकी की दावत किताब तोहफे में है। और बड़ा ही खूबसूरत सवाल, अमेजिंग क्वेश्चन, मज़ेदार सवाल है और बहुत सारों की मालूमात में इजाफा होगा। खुलफाए राशिदीन में से वो कौन हैं जिनके 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान हैं? क्या बात है मदीने की। सहाबा में आपस में प्यार देखो। खुलफाए राशिदीन में से वो कौन से सहाबी हैं जिनके 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान हैं? पहले आपने हाथ खड़ा किया था ना। चलें जनाब, आज अंजलि, ये तो वही सिंध वाले भाई है ना। अच्छे दूसरे हैं। चलें जनाब। और अगर जवाब दुरुस्त नहीं हुआ तो हाथों हाथ मदनी काफिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब्दुल वहीद तारी इस्लामाबाद से। माशाल्लाह, इस्लामाबाद से हैं। जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आप चारों खुलफाए राशिदीन में प्यार देखें कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जो बकिया 3 साहबजादे थे, हसनैन करीमैन का जिक्र तो हम सुनते ही रहते हैं, मगर अबू बकर, उस्मान और अली ये नाम भी था। और क्या बात है मदीने की। जनाब चलते हैं हम अगले सवालात की तरफ, और सवाल करेंगे हम सरदाराबाद फैसलाबाद वालों से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर के बारे में हमने बहुत सुना, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको उस मिंबर मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब फरमाए, मेहराब की ज़ियारत नसीब फरमाए, रियाजुल जन्ना का दीदार नसीब फरमाए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर की कितनी सीढ़ियाँ थी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर की 3 सीढ़ियाँ थी। और आप किस सीढ़ी पर खड़े होते थे? तीसरी सीढ़ी पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिंबर की 3 सीढ़ियां थी, आप तीसरी पर खड़े होते थे, यही सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या क्या सीखने को मिल रहा है मदनी चैनल के जरिए, ज़हनी आजमाइश के जरिए। बारी है बलूचिस्तान वालों की। वो कौन से 3 औकात हैं जिनमें सलाम करना सुन्नत है? सलाम तो हम करते हैं, घर में आते हुए, इजाजत की वक्त, रुखसत की वक्त, मुलाकात की वक्त। जनाब, घर में आने की इजाजत चाहते वक्त, मुलाकात के वक्त, रुखसत के वक्त, ये वो औकात हैं जिसमें सलाम करना सुन्नत है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बलूचिस्तान वाले जबरदस्त तैयारी। फैसलाबाद सरदाराबाद की बारी है।
गुनाह अपने साथ 10 बुरी खसलतें लाता है, उनमें से 5 बताइए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह अपने साथ 10 खसलतें लाता है। उनमें से ये है कि आदमी अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी जान पर जुल्म करता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल को गज़ब दिलाता है और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रंजीदा करता है और जहन्नम से करीब आ जाता है और जन्नत से दूर चला जाता है। जी 5 तो हो गई हैं। अपने बातिन को नापाक कर बैठता है, ज़मीन व आसमान और तमाम मखलूक को अपनी नाफरमानी पर गवाह बना लेता है, तमाम इंसानों से खयानत और रब्बुल आलमीन अज़्ज़ वजल की नाफरमानी करता है, आमाल लिखने वाले फरिश्तों यानी किरामन कातिबीन को तकलीफ देता है। एक गुनाह कर कर वो 10 बुरी चीज़ों पर गोया मेरे मीठे इस्लामी भाइयों 10 बुरी खसलतें उसके अंदर आ जाती हैं। एक गुनाह भी क्यों करें, नियत करते हैं इंशाअल्लाह गुनाह से बचकर नेकियां करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी है बलूचिस्तान वालों की। नेकी ना छोड़ने से मुताल्लिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फरमाने अज़मत निशान है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है आलिशान है, नेकी की किसी बात को हकीर ना समझो, चाहे वो तुम्हारे अपने भाई के साथ खंदा पेशानी के साथ मुलाकात ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अज़मत निशान है, नेकी की किसी बात को हकीर ना समझो, चाहे वो तुम्हारा अपने भाई से खंदा पेशानी से मुलाकात करना हो। जवाब ये भी दुरुस्त है। हर नेकी पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। बारी है अब सरदाराबाद वालों की। दिल की सख्ती के 2 कौन से असबाब हैं? जी कसरत गुफ्तगू और कसरत ताम, यानी ज़्यादा खाना और ज़्यादा बोलना। पेट भरकर खाना, ज्यादा बोलना, ये दिल की सख्ती के असबाब हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब ये हम सब के लिए कितना बड़ा मैसेज है। कुछ लोग बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि बंदा सोचता है कि म्यूट का बटन कहां पर है, खामोशी नहीं होते। और कुछ लोग खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं। दिल फिर कहते हैं सख्त हो गया है तो कम बोला करें, कोशिश करें कि कम खाएं। अल्लाह ने चाहा दिल की सख्ती से निजात हासिल होगी। बारी है बलूचिस्तान वालों की। जनाब इब्ने नजीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब दुनिया का कोई अहम काम आ जाए तो उसे पूरा करने से पहले खाना मत खाओ, क्योंकि फ़इन्नल अक्ला युग़य्यिरुल अक्ला। इस इबारत का क्या तर्जुमा है? आप रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई अहम काम करो तो उससे पहले खाना न खाओ कि खाना अक्ल को खा जाता है। अल्लाह, खाना जो है वो अक्ल को खा जाता है। बंदा कहता है पहले खाना खा लो फिर बात करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। बाज़ औक़ात जब खाना खा लेता है तो सुस्ती आ जाती है। तो अहम काम पूरा कर लिया जाए, खाना बाद में भी खाया जा सकता है। बहरहाल जवाब बहुत प्यारा और बिल्कुल दुरुस्त दिया है। याद रहे आपके पास एक मदद का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो मदद ले सकते हैं। सरदाराबाद वालों की बारी है। कारून नामी काफिर किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में था? 3 ऑप्शन है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन सा जानवर है जिसको पहली जरब मारने पर 100 नेकियां मिलती हैं? और वो बलूचिस्तान में लगता है ज्यादा भी पाया जाता है। जनाब बिच्छू, सांप या छिपकली? छिपकली। आपने कहा छिपकली और जवाब ये भी दुरुस्त है। यानी छिपकली को पहली जरब में अगर मारा जाए तो 100 नेकियां मिलती हैं, मगर वो ज़रब लगाते हुए ये देख लिया जाए कि वो ज़रब किसी को और को ना लग जाए, घर की लाइटें ना टूट जाएं। तो बहरहाल इस एहतियात को ज़रूर लाजिम कीजिएगा। कहा आज ही ज़हनी आजमाइश में देखा है और ज़रबे लगाने निकल जाएं तो ऐसा ना कीजिएगा कि किसी का सर ही फोड़ दें। हो सकता है जब भी खड़े हो गए हो। हाँ खड़े हो गए हो चलो, लेकिन वो बाज़-औक़ात ये भी तो देखे ना, छिपकली छोटी है, पत्थर इतना बड़ा उठा लिया, दीवार भी तोड़ दी। तो ये भी ख्याल करना है ना, अकल भी थोड़ी होनी चाहिए। बहरहाल सरदाराबाद, फैसलाबाद और बलूचिस्तान वाले तो वैसे ही अपने साथ असला रखते हैं, तो भाई ये इससे मारने मत चले जाना छिपकली को। चलें जनाब, सरदाराबाद वालों की बारी है। मस्जिद खैफ में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद खैफ का दीदार अता फरमाए। चलो एक सवाल का जवाब आप तैयार रखें, मस्जिद खैफ कहां पर है? इसका जवाब आपने देना है। 50 अंबिया किराम, 60 अंबिया किराम या 70 अंबिया किराम? 70 अंबिया किराम। 70 अंबिया किराम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, कौन बताएगा मस्जिद खैफ कहां है?
जो मक्का पाक गए हैं, मदीना तैयबा गए हैं, ज़ियारतें की हैं या मदनी चैनल पर ज़ियारतें की हैं या मदनी मुज़ाकरे पाबंदी से देखे हैं, मुझे उम्मीद है वो बता देंगे। जी पीछे से जनाब क्या तोहफा देंगे? मेरा तो ख्याल है इनको रफ़ीकुल हरमैन अगर हो तो वो उसका तोहफा दें या फिर और कोई किताब। जी मकतबतुल मदीना से जारी करदा किताब अल्लाह वालों की बातें। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की बातें किताब। जनाब बताइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैदान अरफा में, मैदान अरफात में तो नहीं है। चले इनको जल्दी से मदनी काफिले में सफर करवाइए। चले जनाब, मदनी मुन्ने अगर जवाब दे दे तो क्या बात है। आपको अब्बू को मदनी काफिले में जाना पड़ेगा अगर गलत जवाब दिया तो। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा का इलाका बताइए, मशहूर जगह है। जवाब तो आपका आधा दुरुस्त मान लेंगे लेकिन कोई मिल के बता दे। मिल के बताए भाई कहाँ है? मक्का में, मिना शरीफ में है। चले इनका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं क्योंकि मिना भी मक्का पाक में ही है, तो इनको तोहफा दे दीजिए जनाब। अब बारी है आपकी। हजर अस्वद जन्नत से किस पहाड़ पर नाजिल हुआ था? 3 ऑप्शन है, जबल अबू कुबैस, ओहद शरीफ या कोहे तूर। चाहे तो आप मदद भी ले सकते हैं। जबल अबू कुबैस पर नाजिल हुआ। दुनिया में सबसे पहला पहाड़ जबल अबू कुबैस है और उसी पर हजर अस्वद जन्नत से पहाड़, उस पहाड़ पर नाजिल हुआ। जवाब ये भी दुरुस्त है। अल्लाह करीम हम सबको बार बार मक्का मुकर्रमा की हाजिरी भी अता फरमाए और हजर अस्वद के बोसे लेना, हजर अस्वद का दीदार करना भी नसीब फरमाए। दीदार काबा की क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितने खूबसूरत सवालात हैं कि मिना और काबे की यादें ताज़ा हुई। बहरहाल आइए हम चलेंगे हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे। मेरा ख्याल यही है, जी हाँ, स्कोर बोर्ड भी यही बता रहा है कि अब तक सरदाराबाद और फैसलाबाद के इस्लामी भाइयों ने कोई गलती नहीं की है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी 20 नंबर हैं माशाअल्लाह। बलूचिस्तान वालों ने, सरदाराबाद वालों से तो तवक्को थी लेकिन बलूचिस्तान वालों ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं और देखते हैं कि ये किस कदर मुकाबला अच्छा और आगे लेकर जाते हैं। इश्क के बोल हमारा अगला राउंड है। आइए शुरू करते हैं इश्क के बोल। जी इश्क के बोल के अंदर 5 अशार हैं और आपसे बारी बारी वो पूछे जाएंगे, या तो पहला मिसरा या दूसरा मिसरा। मशवरा ज़रूर कीजिएगा। आप दोनों ने अभी तक अपने मदद का ऑप्शन यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ इस्लामी भाइयों से मदद भी ले सकते हैं। बारी है सरदाराबाद वालों की। एक निगाहे नाज पर सैकड़ों जामे मैं निसार। एक निगाहे नाज पर सैकड़ों जाम मैं निसार, जामे मैं निसार। थोड़ा सा मुश्किल शेर है। थोड़ा से नहीं, ज्यादा मुश्किल हो गया लग रहा है। हाँ, जो ना है वो तो ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। आसान भी मुश्किल हो जाता है जो ना है जब। मदद। जी मदद लेंगे। मददगार भी कोई है तो लेंगे ना। अल्लाह हो गनी। साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब है। कोई मददगार नहीं है भाई इस शेर पर। जनाब मैं ही पढ़ देता हूं और वो मदद नहीं मानी जाएगी। गर्दिशे चश्मे मस्त से हमने पिए हैं जाम दो। गलती हो गई है। बारी है बलूचिस्तान वालों की। आसान शेर आपके लिए भी नहीं है। वस्ते मुसब्बिहा पे सर रखिए अंगूठे का अगर। अल्लाह, इसी कलाम का शेर है और ये भी लगता है नहीं जानते। मदद की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। बड़े होशियार हैं, मदद का ऑप्शन यूज नहीं किया, आपका इस्तेमाल हो गया और जवाब भी नहीं आता। जवाब भी नहीं आता। नामे इलाहे लिखा और अलिफ है लाम दो। जनाब गलती हो गई है, मगर सरदाराबाद वालों ने अपना मदद का ऑप्शन भी यूज किया। हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा। हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा। हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा। जवाब ये भी दुरुस्त है। तू नाइबे खुदा है महबूब किबरिया है मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा। हाय हाय है मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा। जवाब ये दुरुस्त है। ये है हुजूर ही का मर्तबा शबे मेराज। ये है हुजूर ही का मर्तबा शबे मेराज।
बगैर वास्ता से रब से कलाम कर लेना। बगैर वास्ता रब से कलाम कर लेना, जवाब दुरुस्त है। हबीब अर्श से भी पार जाके रब से मिले, कलीम को था मुयस्सर कलाम करना। हबीब अर्श से भी पार जाके रब से मिले, कलीम को था मुयस्सर कलाम कर लेना, जवाब ये भी दुरुस्त है। बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत शेर, क्या बात है इस शेर की। और इसका दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। मौत ने हाय मुझे जान से जाने न दिया, सर तो सर जान से भी जाने की हसरत है, हाय मौत ने मुझे जान से जाने ना दिया। सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत है, मौत ने हाय मुझे जान से जाने न दिया। हो सकता है शायर का क्या माफी ज़मीर हो, लेकिन जो अपेरेंटली बज़ाहिर इसका माना लगता है कि नबी पाक के दर पर सर के बल क्या जाऊं, मुझे तो जान से जाने की हसरत है कि वहां जाऊं तो वापस ना आऊं, वहीं मर जाऊं, मगर क्या करूं, मौत ने मुझे हाय जान से जाने ना दिया। मेरी मौत ही वहां नहीं आई और मैं वहां कुर्बान हो जाता। अमीर अहले सुन्नत का वो बड़ा प्यारा शेर है ना, काश किस्मत मेरा साथ देती, मौत भी याबुरी मेरी करती, जान कदमों पे कुर्बान करता, अलवदा ताजदारे मदीना। क्योंकि हमारी तमन्ना तो है, लेकिन मौत भी तो आए ना उस दर पर, काश ऐसा वक्त भी आए कि हमें वहीं मरना नसीब हो जाए। उसने याद होगा मदनी चैनल के नाज़रीन को के सिलसिले में मदीना मुनव्वरा में मरने की फजीलत के बारे में भी सुना था। जनाब बारी है हमारे बलूचिस्तान वालों की। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को, सर के बल जाता मगर ज़ईफ ने जाने न दिया। दोबारा पढ़ें। सर के बल जाता मगर ज़ईफ ने जाने न दिया। ज़ईफ नहीं है यहाँ, सर की बल जाता मगर ज़ौफ ने जाने न दिया। ज़ौफ ने जाने न दिया। ज़ईफ वो होता है जो ज़ौफ वाला होता है, कमज़ोर होता है, मगर यहाँ मुराद है कि मेरी कमज़ोरी ने, मैं तो चाहता हूँ कि सर के बल मदीने जाता, मगर कमज़ोर सा हूँ, मेरे ज़ौफ ने जाने ना दिया। जवाब ये भी दुरुस्त है। बसा हुआ है कोई गुल अज़ार आंखों में, क्या खूबसूरत शेर है। बसा हुआ है कोई गुल अज़ार आंखों में, ख़ज़ा के मौसम में खिली बहार आंखों में, कोई के खूब बसा हुआ है कोई गुलजार आंखों में, के चार सू फैला है, चार सू फैला है गुल अज़ार आंखों में, चार सू फैला है लाल अज़ार आंखों में। मैं पढ़ देता हूँ शेर, अब देखें मजलिस क्या तय करती है। बसा हुआ है कोई गुल अज़ार आंखों में, खिला है चार तरफ लालाजार आंखों में। बसा हुआ है नहीं, खिला है चार तरफ लालाजार आंखों में। मजलिस फैसला करे कि क्या ये सही माना जाएगा या एक नंबर दिया जाएगा या कुछ नहीं दिया जाएगा। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। सरदाराबाद वालों को इस शेर के जवाब में कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। बारी है बलूचिस्तान वालों की। खज़ां के दौर में फूली बहार आंखों में, इसका पहला मिसरा पढ़ेंगे। पहली बार बलूचिस्तान वालों को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। खज़ां के दौर में फूली बहार आंखों में, इसका पहला मिसरा पढ़ेंगे। चाहे तो मदद ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मदद के लिए तैयार भी है। अल्लाह, ये भी नहीं, बारी गलती भी साथ करते हैं, कमाल लोग हैं ये तो, जवाब भी सही साथ देते हैं, गलती भी साथ साथ करते हैं। हुआ है जलवा नुमा गुल अज़ार आंखों में, खज़ां के दौर में फूली बहार आंखों में। गलती हो गई है जनाब, और इन दो सवालात के बाद नंबर बराबर हैं। स्कोर बोर्ड पर जाने से पहले यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी कोई शेर सुना जाए। कौन कौन सुनाएंगे? अच्छा, जरा देखते हैं कि इस ऊंची लब्बैक पर जवाब कौन देता है। वो रजा के नेज़े की मार है। जनाब पहले आपने हाथ कर दिया जी। वो रजा के नेज़े की मार है। फिर इस तर्ज में भी सुनाना है अरे भाई आप। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, कि सचार जोई का वार है, कि वार वार से पार कि है। ये वार वार से पार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या तोहफा दे रहे हैं?
हदाई के बख्शिश, सुभान अल्लाह, नातिया दीवान। जनाब एक और शेर पूछे आपसे, रजा, आला हजरत का ही मक्ता सुनते हैं आपसे। रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब। हम सब चाहते हैं ना कि हमारा दिल नबी पाक की जलवा गाह बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा? आला हजरत बताते हैं, सुनिए। जो अपने दिल को नबी पाक की जलवों में बसाना चाहते हैं, आला हजरत बताते हैं, रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब। जो रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब, तो प्यारे अपनी खुदी से रहीदा होना था। तो प्यारे कैदे खुदी से रहीदा होना था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदाई के बख्शिश, हदाई के बख्शिश, आला हजरत का ही कलाम। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत इसका माना है कि अगर अपने दिल को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों में बसाना है ना, तो ये खुद ही जो है ना, अनानियत, तकब्बुर, अपने आप को कुछ समझना, लोगों को हकीर जानना, ईगो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इससे अपने दिल को फारिग कर दो, दिल को साफ कर दो इन खुदी के मामलात से। फिर देखो नबी पाक के जलवे कैसे बसते हैं। रहें उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। आरिफ भाई मौजूद हैं, कोई भी एक शेर इनमें से तर्ज में भी सुनाएं। रहें उनके जलवे जी, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने, मेरा दिल बने यादगारे मदीना, मेरा दिल बने, हाँ मेरा दिल बने यादगारे मदीना, मेरा दिल बने। कलाम में एक बहुत खूबसूरत इल्तिजा है, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। अजब रंग पर है, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। चलते स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज का मुकाबला 2 सेगमेंट्स के बाद कहां तक पहुंचा है। जी 26-26 नंबर हैं दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों के। अगला सेगमेंट मुकाबले को किसी एक तरफ कर सकता है, हो सकता है ना करे। चलते हैं मदनी कसौटी की तरफ। मदनी कसौटी में आपको एक कसौटी दिखाई जाएगी। अगर आपने मदनी मुज़ाकरे में वो कसौटी देखी हुई है तो ये आपके लिए समझिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि आप जल्दी जवाब दे देंगे। और अगर नहीं देखा इस कसौटी को तो फिर गौर ज़्यादा करना होगा। 5 सवालात के जवाबात में आपने जवाब दिया तो 5 नंबर मिलेंगे। 7 सवालात के जवाबात के बाद जवाब दिया तो 4 नंबर। अगर 9 सवालात सुनकर जवाब देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। और सारे ही सवालात सुनकर जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। और कोई जवाब नहीं देंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, आखिरी सवाल सुनकर आप चाहें तो मदद दे सकते हैं। आपने अपने मदद का ऑप्शन यूज कर लिया है। सरदाराबाद फैसलाबाद के इस्लामी भाइयों के लिए शुरू करते हैं मदनी कसौटी। रफी भाई, आज अगर आइस साहब सोचे और आप लोग पूछें, आज आप शख्सियत इंशाल्लाह
ذہن میں سوچ لیں, ہم سب مل کر کوشش کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ان کا تعلق پاکستان سے ہے. لا. صحابی ہیں. نعم. عشرہ مبشرہ سے ہیں. لا. اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. لا. مرد ہیں. نعم. جناب 5 سوال کے بعد ایک نعم آیا ہے, آگے جانا ہے جی جناب, آگے چلیے. مدینہ شریف میں مدفون ہیں. کہہ سکتے ہیں. معروف جو ہیں فقاہت کی وجہ سے ہیں. لا. 7 سوال ہو گئے ہیں, آگے چلنا ہے جناب. کسی جنگ میں شہید ہوئے. نعم. احد شریف کے قریب ان کا مزار ہے. نعم. جناب 9 سوال کے بعد جواب دینے جا رہے ہیں. یاد رہے, اگر ابھی آپ جواب صحیح دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے, غلط دیں گے تو 1 بھی نمبر نہیں ملے گا. احد شریف کے پاس بہت ساری شخصیات کے مزارات ہیں, چاہیں تو جواب دیں, چاہیں تو آگے چلیں. عبدالحبیب بھائی آپ پہنچ گئے تھے ادھر جب میں تو اس بدری کسوٹی میں تھا, لیکن سچی بات ہے کافی پرانی لگ رہی ہے, مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں یاد. میں نے جس طرح کہا نا, احد شریف پہ تو 70 کے قریب صحابہ کرام کے مزارات ہیں, اور 3 مزارات جو ہیں وہاں پر خاص طور پہ بڑے نومینی ہیں, تو ان تینوں میں سے بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے. جی کیا کریں گے, جواب دیں گے؟ دے دیجئے جواب. میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے. اب چلتے ہیں کہ یہ بدری کسوٹی کا جواب کیا تھا. جی ماشاءاللہ, سید الشہداء ان کا لقب ہے. نعم. سبحان اللہ. اسد اللہ اور اسد الرسول بھی انہیں کہا جاتا. نعم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. نعم. سبحان اللہ. شاید نام بتا دیں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب سردار آباد والوں نے. اب باری ہے بلوچستان والوں کی. بلوچستان والوں کو انشاءاللہ تھوڑے سے یہاں موجود مدنی منع اس طرف ہو جائیں تاکہ اسکرین کلیئرلی یہ دیکھ سکیں. آج ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی ہیں, ہمارا اسٹوڈیو تو فل ہو چکا ہے, تھوڑی جگہ ایک دوسرے کے لیے بنانی پڑے گی. بہرحال اب چلتے ہیں اگلی بدری کسوٹی کی طرف. یاد رہے 3 نمبر انہوں نے لے لیے ہیں, آپ چاہیں تو 5 بھی لے سکتے ہیں, مگر مشورہ کیے بغیر جب تک کنفرم نہ ہو جواب مت دیجیے گا, کیونکہ غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. چلیں دکھائیں مدنی کسوٹی بلوچی اسلامی بھائیوں کے لیے. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے. نبی ہیں. لا. باپا جان کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نعم. باپا جان کیا وہ خلفائے اربعہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا جان کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں؟ لا. اللہ. 5 سوالات ہو گئے ہیں اور بہت قریب 5 سوال میں پہنچ چکے ہیں. اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مشورہ کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی اگر غور کریں تو ڈائریکٹ جواب نہیں ہے, کچھ تھوڑا تذبذب ہے. آگے چلیں گے, ہاں عقل مندی کر رہے ہیں, آگے چلیں گے جناب. 2 سوال اور. باپا جان کیا وہ مدینہ پاک میں مدفن ہے؟ لا. کیا انہوں نے خیبر میں ہاتھوں میں دروازہ اٹھایا تھا؟ نعم. جناب 7 سوال ہو گئے ہیں, جواب دینا چاہیں گے یا آگے چلیں گے؟ دینا چاہیں گے, دیجئے جواب. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. جناب آپ نے مولا علی جواب دیا ہے. اب آگے چلتے ہیں, سوالات مزید سن لیتے ہیں کیا مدنی کسوٹی کا جواب تھا. جی اگر یہ جواب درست ہے تو یہ 4 نمبر لے جائیں گے اور پہلی بار بلوچستان کے اسلامی بھائی اس سیگمنٹ میں اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے. جی دکھائیے. پیارے باپا جان کیا وہ داماد رسول بھی ہیں؟ نعم. بابا کیا آپ نے ان کی کرامات پہ کوئی رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے؟ الحمدللہ. باپا جان کیا ان کا لقب مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تو سارے اولیاء کرام صحابہ کرام مشکل کشا ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں بھی سبحان اللہ کے نعرے لگے اور یہاں بھی سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں. ہو سکتا ہے بلوچستان میں بھی بلند ہوئی ہوں, اور 4 نمبر بلوچستان والوں نے حاصل کر لیے ہیں. تو پہلی بار بلوچستان مکی کے اسلامی بھائی سردار آباد سے اس مقابلے میں 1 نمبر سے آگے بڑھے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کے مقابلہ کس طرح
آگے کی طرف جا رہا ہے. جی جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 29 نمبر ہیں ہمارے فیصل آباد سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کے اور 30 نمبر بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کے ہیں. آگے دیکھنا ہے مقابلہ کس طرح مزید آگے بڑھتا ہے. جناب اگلا راؤنڈ ہے ہمارا جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی جناب قرآنی معلومات کا جو دو سوال ہوں گے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے اور آپ کے پاس ابھی بھی مدد کا آپشن باقی ہے. سردار آباد والے سے شروع کریں گے. قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا. جواب بالکل درست ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ بڑی دیر بعد آپ نے ہمارے سوئی کے اسلامی بھائی کو شامل کیا ہے مشورے میں. لگتا ہے سیگمنٹ بانٹے ہوئے تھے. ولید بن کعب بن ریان. تھوڑا سا ٹھیک کیجئے. ولید بن مصعب بن ریان. ولید بن مصعب بن ریان. جواب درست ہے. مشکل سوال تھا مگر بہترین جواب. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. وہ کون سی صورت ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی احمد ذکر کیا گیا ہے؟ سورۃ الصف. سورۃ الصف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی احمد ذکر کیا گیا. جواب یہ بھی درست ہے. سورہ یوسف کا شان نزول بیان فرمائیں. اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے قوم کا حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی اور سیرت کا بیان ہے. اس مناسب سے اسے سورہ یوسف کہتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں مکہ المکرمہ میں تھے تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے والد مصر میں آئے تھے تو وہ کس طرح آئے تھے، اور اسی حوالے سے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ یہ کہا اور اس وقت سورہ یوسف نازل ہوئی. جناب یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب کی اولاد ملک شام سے مصر کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کیا ہے. اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بڑا امیزنگ آج مقابلہ ہے اور بلوچستان والے بالکل پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبردست تیاری بھی کی ہے. اب تک بڑا اچھا آگے تک بڑھے ہیں. 34 نمبر لے لیے ہیں بلوچستان مکی کے اسلامی بھائیوں نے. 33 نمبر ہیں سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کے. ہمارے 2 سیگمنٹ باقی ہیں اور جب 2 سیگمنٹ باقی ہوتے ہیں تو ہم کچھ پڑاؤ لیتے ہیں، کچھ ناز شریف بھی سنتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے مل کر ناز شریف سنتے ہیں. عارف بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی پیاری سی ناز شریف سنیں گے. آپ اپنی یہاں آ جائیں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر خلد کی بہاروں سرکار رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی کہیے در پہ بولا کا در پہ بولا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے دیکھ لو سیکھوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو
दिखाओ जलवा 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 दिखाओ मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी वरना इन आँखों का मसरफ ही नहीं है सरकार तुम्हारा रुख ज़ेबा नजर आए उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें के देखने की है सारी बहार आँखों में दीद तेरी है ईद मेरी आका ईद मेरी जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ दिखाओ जलवा 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 मेरी ईद का हो जाए सामान या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह तुम्हारी दीद का शरबत बवक्ते नज़अ मिल जाए तो हो जाएगी मुझ पर मौत आसान या रसूल अल्लाह दीद तेरी है ईद मेरी जलवा दिखाओ मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी आका घर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी सुभान अल्लाह अल्लाह करीम ये तमन्नाएं ये इल्तिजाएं हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाजरीन की कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुल्फ़कार अली अत्तारी सेंधा प्रोजेक्ट जिला चावी बलूचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। हाजी साहब सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा सिलसिला है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे डेरा लायार बलूचिस्तान के इस्लामी भाई सिलसिले में शामिल हैं। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान वाले इस्लामी भाई जीत कर आगे जाएं ताकि हमारे बलूचिस्तान वालों का भी हौसला अफजाई हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बलूचिस्तान में खुशी का समा है और इस वक्त 1 नंबर से बलूचिस्तान की टीम आगे भी है। बहरहाल सरदाराबाद वाले भी पुरुम्मीद होंगे और ये मुकाबला आखिरी मुकाबला दोनों टीमों का फिर भी नहीं होगा। जो पीछे रह जाएंगे उनको फिर भी एक मौका मिलेगा। सच्ची बात यह है कि हमें भी बड़ी खुशी है कि बलूचिस्तान के इस्लामी भाई सिलसिले में शामिल हैं। एक और कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद रज़ा अत्तारी चुबारा ज़ियाकोर से। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी आज़माए सिलसिला बड़ा ही प्यारा सिलसिला है, बड़ा ही मीठा मीठा सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले को
बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखा और सुना जा रहा है, तो मेरे तमाम आशिकान रसूल की बारगाह में अर्ज़ है कि ये भी इस सिलसिले को देखें। ये ऐसा प्यारा सिलसिला है, इसमें मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ जो घरों में होती हैं आपस में वो तय कर लेते हैं ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है। इस तरह उनके अंदर भी इल्म दीन सीखने का जज्बा बढ़ता है। अल्लाह जल्ला जलालहू हमारे मदनी चैनल को शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल तकसीम होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी इतलात मिलती हैं कि आज वो बहन नाराज़ हो गई क्योंकि उनकी टीम हार गई, तो कल भाई नाराज़ हो गए तो उनकी टीम हार गई। तो सीखने सिखाने के लिए ज़रूर तकसीम किया करें, लेकिन इसके बाद आपस में कोई नाराज़गी ना किया करें। एक और कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं हमाद तारिक खानपुर से बात कर रहा हूँ। आपका ये सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा है, हम सब बहुत शौक से देखते हैं। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज है, आप मेरे भाइयों के लिए दुआ कीजिए, इनकी औलाद की दुआ फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे करीम आपकी तमाम नेक और जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए और आपके पूरे घराने को बरकत अता फरमाए। एक और कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सलमान अत्तारी अलमदनी अर्ज़गुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला ज़हनी आज़माइश अपनी बरकतें और बहारें लुटा रहा है। बड़े ही अमेजिंग, बड़े ही दिलचस्प और बड़े ही दिलरुबा अंदाज में दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं और सैम भाई माशाअल्लाह तैयारी करके आते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद इसमें बरकत अता फरमाए। इल्म का फैज़ान जो है वो इस सिलसिले में बहाया जा रहा है। बाबुल मदीना में से दो टीमें जो हैं इस सिलसिले में शामिल हैं, बाबुल मदीना मक्की और बाबुल मदीना मदनी। बाबुल मदीना मदनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी तैयारियों में मसरूफ़ अमल है और मदनी मुकाबले की जो हिकमत अमली है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बनाई है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमारी बाबुल मदीना मदनी टीम को भी कामयाब फरमाए और सिलसिले में कामयाब हो ना हो, आगे जाएं या ना जाएं, एक बात भारत जरूर है, इल्म दीन का खजाना हाथ आ जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की बरकतें अता फरमाए। जितने ये सिलसिला करने वाले इस्लामी भाई हैं अल्लाह करीम सबके घर बार पर, माल असबाब पर, रिज्क पर अपनी रहमतों के साए रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। बाबुल मदीना वालों ने क्या हिकमत अमली बनाई है ये तो बाबुल मदीना वालों से पूछना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। आइए मुकाबले को, स्कोर बोर्ड को देख लेते हैं ताकि दोबारा मुकाबले में हम वापस आ जाएं और फिर इंशाल्लाह आखिरी दो सेगमेंट्स को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि आज अगले राउंड की तरफ सफ़र बलूचिस्तान वाले करते हैं या सरदाराबाद वाले। जी फैसलाबाद मक्की के इस्लामी भाई जो हैं 33 नंबर उनके हैं और 34 नंबर जो हैं बलूचिस्तान वालों के हैं। एक नंबर से हमारे बलूचिस्तान के इस्लामी भाई आगे हैं और अब देखना यह है कि ये आगे ही रहते हैं या कोई मुकाबले के अंदर फ़र्क आता है। बड़ा अच्छा सेगमेंट है, बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है और हमने वो शुरू करना है समझाइए मगर इशारों से। अगर इस सेगमेंट के अंदर पहले बारी होती है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की, आज कौन इशारे करेंगे और कौन इशारे भूजेंगे, हैं ये है ना। अच्छा जनाब, बापू किसको लिया जाए दो इस्लाम? कोई ऐसा यूनिक काम किया हो ना किसी ने, कोई ऐसी ज़बरदस्त तैयारी हो, कोई ऐसी ज़बरदस्त कोई मदनी फीस हो, कोई ऐसे इस्लामी भाई जो आज दाढ़ी शरीफ की पूरी नियत करे। अगर दाढ़ी शरीफ नहीं है और वो नियत करते हो तो चलें। जो दाढ़ी वाले हैं वो जुल्फों की नियत, हाँ ये भी नियत हो सकती। चले 12 माह में सफ़र कर चुके, करेंगे कब करेंगे? चले आप आ जाएं, एक ही आ जाए। रमज़ान से 12 माह में सफ़र करेंगे। और कौन 12 माह में सफ़र करेगा? अच्छा ये भी ऊपर आके इशारे। अच्छा हमारे कैमरामैन में से भी कोई आना चाहे तो आ सकता है। चलें भाई, हमारे आज कैमरामैन को भी मजलिस कह रही है कि इनको भी मौका दिया जाए। अगर मैं खुद बुला लूँ तो कैमरा संभाल लेंगे आप? चले भाई, डायरेक्टर में से भी कोई आना चाहिए, संभाल लेंगे कैमरा। तो चले भाई आज आप आ जाएं। हमारे एक कैमरामैन होंगे और एक 12 माह वाले होंगे। चले 12 माह वालों को समझाना है कैमरामैन को, और कैमरामैन जो है आप इशारे मत कीजिएगा, आप बूझ लीजिएगा। ये इशारे करेंगे, आपने पहचानना है इन्होंने क्या कहा है। तोहफा बताते शायद फिर कुछ। हाँ तोहफा इंशाल्लाह दोनों को हरमैन के तोहफे देंगे इंशाल्लाह। आ जाएं। चले जनाब, आज बगैर तैयारी के अचानक कैमरामैन जो सबके इशारे बनाते हैं, आज इनकी बारी आ गई है जनाब। आइए, इनसे कोई अच्छी नीयत भी करवा लेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा आप यहाँ आएंगे,
इशारा ये करेंगे आपको, ठीक है? आपने बूझना है कि इशारा क्या। आप इतने दिनों से ज़हनी आजमाइश की कैमरा मैनी कर रहे हैं तो आपको कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा कि इशारे कैसे होते हैं। तो अब देखना ये है कि ये कैसे इशारे करते हैं जनाब। अगर दोनों ने सही मिलकर जवाब दे दिया तो दोनों को तोहफा मिलना है, वरना दोनों को तोहफा नहीं मिलेगा। अलबत्ता मदनी काफिले वालों को इजाज़त है इन्हें ले जाएं मदनी काफिले में। चले जनाब, आसान इशारा आ गया है, ठीक है? अब यहाँ आ जाए, थोड़ा यहाँ ऊपर आ जाए और आप भी इसके ऊपर आ जाए, ऊपर चले जाए जी। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी दोबारा कहें। तवाफ इशारा था और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मदनी चैनल के कैमरामैन भी जनाब इशारे बूझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आइए जनाब, आप कोई मदनी काफिले की तो नहीं है, तो नाम क्या है आपका? उमैर भाई। उमैर भाई माशाल्लाह हमारे मदनी चैनल के कैमरामैन है। ये वो इस्लामी भाई है जो कैमरों में नजर आपको नहीं आता, ये पीछे होते हैं कैमरों के, तो आज हमने इनको बुला लिया है। तो अब उमैर भाई भी कोई इंशाल्लाह 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र की नियत कर ले, इंशाल्लाह सफ़र करेंगे ना इंशाल्लाह। चले भाई, मदीने शरीफ की तस्बीह, अल्लाह करीम आप दोनों को तवाफ़े काबा भी नसीब फरमाए। 313 बार रोजाना दुरूद पाक की नियत भी कर ले इंशाल्लाह माशाल्लाह। कह रहे मुतबर्रिक पानी भी दें भाई, चले दोनों को मुतबर्रिक पानी भी दें भाई इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, अब शुरू करते हैं हमारी दोनों टीमों के दरमियान। समझाइए मगर इशारों से, आपकी तरफ से जो इशारे करेंगे यहाँ आ जाएं और मुझे इशारे भिजवाए जाएं। मदीना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। समझाइए मगर इशारों में। दोनों टीमों से 3-3 इशारे करवाए जाते हैं और उन इशारों से वो अपनी टीम को समझाने की कोशिश करते हैं। सही जवाब पर इन्हें 2 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं मिलता। अजीब, पर्ची लीजिए। चले जनाब, ये आपका इशारा है और वक्त शुरू होता है अब। काबा, हतीम, काबे का पानी यहाँ निकलता है, परनाला। परनाला, काबे का परनाला। काबे का परनाला, परनाला, काबे का परनाला। उसको कुछ और भी कहते हैं ना? काबे का परनाला ही पड़ा उसको। यहाँ से पानी काबे का निकलता है, वो तरफ पानी का परनाला यहाँ से। काबे का परनाला जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो है वो मीज़ाबे रहमत है। हैं? अब ये इसका कोई शेर सुनाना पड़ेगा आपको जिसमें मीज़ाब का तस्करा आता हो। मदीना ये तो सुना दो तो क्या बात है, वरना फिर आप सुनाएंगे इंशाल्लाह। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, आबे रहमत का यहाँ जोश बरसना देखो। जी सुनाएंगे तर्ज में। ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। बलूचिस्तान वालों ने पर्ची निकाल ली है। याद रहे इनके पास अभी एक मदद का ऑप्शन भी बाकी है। ये अगर किसी इशारे पर ना पहुंच सके तो ये मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। बल्ब, सितारा, चाहे तो मदद ले लें। अब गुस्से में हो रहे हैं शायद। मदद लेंगे जनाब। जी, किससे मदद लेंगे? इशारा तो ये कर चुके हैं, किससे लेंगे मदद? पता, हाथ उठाए कौन कौन मदद करना चाहते हैं। जी माइक लीजिए बापू, इनसे मदद लेंगे। आगे आइए आप, आगे आइए।
अब देखिए ये मदद सही करते हैं या गलत करते हैं। सही जवाब 2 नंबर दिला देगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 3 परिंदे। 3 परिंदे जवाब दुरुस्त दे दिया है और ये मदद भी काम आ गई है जनाब। आइए सरदाराबाद के इस्लामी भाई, पर्चियां लाई जाए। आपका वक्त शुरू होता है अब। आदमी, एक एक आंख वाला आदमी। एक आंख वाला आदमी जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। बलूचिस्तान वालों, अब मदद की गुंजाइश नहीं है जी, इनसे निकलवाइए। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। सांपनुमा जिन। सांपनुमा जिन जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। हमें तो ऐसा लगा कि आप बहुत कम बोलते हैं, मगर आपने बोला और बहुत अच्छा बोला, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपकी बारी है जी, पर्ची लीजिए। जनाब वक्त शुरू होता है अब। नात खानी और नजराना। नात खानी, नात खां और नजराना जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये रिसाला है अमीर अहले सुन्नत का, आखिरी इशारा है। बलूचिस्तान वालों की बारी है। अब तक सब इशारों में सही जवाबात सरदाराबाद वालों ने दे दिया है। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। तकब्बुर। तकब्बुर जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये जवाब मुश्किल से देंगे, लेकिन बड़ी जनाब रोब वाली चाल चलकर दिखा दिया है और जवाब दुरुस्त कर दिया है। बहुत जबरदस्त तैयारी है और मुकाबला बहुत क्लोज जा रहा है। मदनी चैनल के नाजरीन, जो फीलिंग्स यहाँ स्टूडियो में है, मैं फील कर रहा हूँ कि हो सकता है आप भी जहाँ जहाँ ये देख रहे होंगे, वाकई ये तजब्जुब है। और आज अगर बलूचिस्तान वाले आगे बढ़ जाते हैं तो ये हमारे ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 का बहुत बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि सरदाराबाद में माशाल्लाह वो इस्लामी भाई मौजूद है जो सीज़न 3 के फाइनल जीत चुके हैं और बड़ी अच्छी टीम है माशाल्लाह, बड़ी तैयारी के साथ है। मगर बलूचिस्तान वाले ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है आखिरी राउंड में मुकाबला किस तरफ जाता है। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे आखिरी राउंड, जिसका नाम है हमने सफर करना है मगर अकेले। जी दिखाइए स्कोर बोर्ड। 39 सरदाराबाद फैसलाबाद के 39 नंबर हैं और बलूचिस्तान मक्की के 40 नंबर हैं। 1 नंबर से बलूचिस्तान वाले आगे हैं और एक कॉल हमारे पास है और मुझे कहा जा रहा है उस कॉल को सिलसिले में शामिल किया जाए। आइए शामिल करते हैं। डॉक्टर अजीजुर रहमान अत्तारी, सरदाराबाद फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। आज ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं, सरदाराबाद फैसलाबाद की भी टीम है और बलूचिस्तान की भी। बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इसी तरह मदनी चैनल को ताक़यामत शाद आबाद रखे। और यूनिवर्सिटी में इज्तिमाई तौर पर कुछ इस्लामी बैठ कर देख रहे हैं। हाजी अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि दुआ फरमा दें यूनिवर्सिटी के लिए भी और मदनी कामों के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, अच्छा जनाब, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इज्तिमाई तौर पर जमा होके सरदाराबाद के इस्लामी भाई देख रहे हैं। तो हो सकता है बलूचिस्तान में डेरा अल्लाह यार ये सुई में भी इस्लामी भाई देख रहे होंगे, लेकिन अब देखना यह है कि मुकाबला किस तरफ इख्तिताम पजीर होता है। दोनों तरफ के इस्लामी भाई से गुजारिश है अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और एक एक इस्लामी भाई दरमियान में फासले के लिए चले जाएं। सिलसिले का शुरू करते हैं आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी माशाल्लाह, आखिरी जो कॉल थी मुझे बताया कि उन्होंने दुआ के लिए भी कहा था। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ना सिर्फ उस सरदाराबाद की यूनिवर्सिटी में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान तलबा है, असातिज़ा है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, मदनी कामों में तरक्कियाँ अता फरमाए। और हमारे तलबा असातिज़ा को भी चाहिए कि अपनी तमाम जो इदारे हैं, शोबे हैं, इसमें मदनी कामों के लिए दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों से रब्ता करें। हमारा एक पूरा शोबा है, शोबा तालीम। अगर आप उससे राब्ते में रहेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप उसमें काम कर सकेंगे। शुरू करते हैं सफ़र है मगर अकेले। 12 नंबर होंगे। सरदाराबाद के इस्लामी भाई को नंबर दिखाए जाए, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 5। नंबर 5 के पीछे क्या सवाल है बताइए।
बड़ी अहम बात आज आप सीखने जा रहे हैं। दूसरों की तकलीफों और मुसीबतों पर खुशी का इजहार करना क्या कहलाता है? शुमातत। ये शमातत कहलाता है। ये भी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बड़ी अजीब बात है कि लोग किसी के नुकसान पर, किसी की जनाब कोई तकलीफ पे कोई पड़ जाए, मुसीबत में आ जाए तो उस पर खुश होते हैं। ये कितनी बुरी बात है और ये शमातत कहलाता है। अल्लाह मुझे और आप सबको इससे महफूज रखे। बारी है बलूचिस्तान वालों की। कोशिश करनी है कोई गलती ना हो। एक गलती आपको मुकाबले से बाहर कर सकती है और अब सबने सफर करना है अकेले। इमाम साहब हैं डेरा अल्लाह यार के, आप जनाब नंबर पसंद करें। 4 नंबर बताइए, 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब पहली मर्तबा वही नाजिल हुई उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। आपने कहा 40 साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जी। अब बारी है हमारे सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। नंबर पसंद करें। नंबर 6। नंबर 6। अल्लाह, आप उम्रे पर तशरीफ ले गए पहले कभी? अल्लाह करीब आपको जल्दी हाजिरी अता फरमाए। सवाल वहां के मुताल्लिक है, काबा मुशर्रफा के चारों कोनों के नाम बताएं। और इस सेगमेंट में मदद की भी गुंजाइश नहीं है और दोनों मदद वैसे भी ऑप्शन यूज कर चुके हैं। काबा मुशर्रफा के 4 कोने हैं, उन चारों कोनों के नाम बताएं। वक्त आपका गुजर रहा है। हाँ, कोई है जो यहां बताएं? चले जनाब, इनको कोई मक्की तोहफा ही दे दें भाई। मक्के की बात हुई है, काबा मुशर्रफा की बात हुई है जी। चलें, आ जाए काबा मुशर्रफा के चारों कोनों के नाम। बड़ी ही प्यारी तसनीफ अमीर अहले सुन्नत की फैजान सुन्नत तोहफे में दी जा रही है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकने असवद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी। रुकने असवद, रुकने शामी, रुकने यमानी, रुकने इराकी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीब आपको काबा मुशर्रफा का बार बार दीदार भी नसीब फरमाए। जनाब बारी है हमारे बलूचिस्तान वालों की। मौका मिला है मजीद आगे बढ़ने के लिए। नंबर बताइए स्क्रीन पर। नंबर 7। 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है? बड़ा आसान सवाल आ गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं। मशवरा नहीं करेंगे, खुद जवाब देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं। बाकी यहां सारे खामोश रहेंगे प्लीज। बाज़ औक़ात आसान सवाल भी मुश्किल बन जाता है। अल्लाह, सब मिलके जवाब दे दे भाई। बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा। गलती हो गई है जनाब। बारी है हमारे सरदाराबाद वालों की। नंबर बताइए जी। नंबर 1। 1 नंबर के पीछे क्या सवाल है? अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो क्या करें? दरमियान में बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर के लिए। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो दौरान ताम याद आने पर इस तरह कह लीजिए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। इसका तर्जुमा यह है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से खाने की इब्तिदा और इंतहा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बलूचिस्तान मक्की और सरदाराबाद मक्की का मुकाबला जारी है। बलूचिस्तान के इस्लाम भाई की बारी है। नंबर पसंद करेंगे आप? 11 नंबर। जब कोई किसी का सलाम लाए तो किस तरह जवाब देना चाहिए? कोई किसी का सलाम आपको पेश करे कि फलां ने सलाम। वालेकुमुस्सलाम। वालेकुमुस्सलाम। जब कोई किसी और का सलाम लाए तो क्या जवाब देना चाहिए? वालेकुमुस्सलाम। नहीं जनाब। दूसरे का सलाम।
अलैकुमुस्सलाम। अलैका वालेकुमुस्सलाम, यानी तुझ पर भी और उस पर भी सलाम हो। आसान सवाल था, तवज्जो शायद आपकी नहीं रही और गलती हो गई है जनाब। बारी है सरदाराबाद वालों की, अब पलड़ा भारी हुआ है सरदाराबाद वालों का। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है, कभी मुकाबला इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। सरदाराबाद वाले नंबर पसंद करें। नंबर 12। नंबर 12। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जनाब। नामा अमाल की तहरीर कौन सी जबान में होगी? पंजाबी में बात करने वाले का भी नामा अमाल होता है, बलोची में भी बात करने वाले का नामा अमाल, और नामा अमाल की जो तहरीर होगी वो अरबी में, अरबी जबान में होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बलूचिस्तान वालों की बारी है, नंबर पसंद कीजिए। 10 नंबर। 10 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? जब किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, छींक को सुनने वाला जवाब में यरहमुकल्लाह कहता है। बताइए ये सुनकर छींकने वाले को क्या कहना चाहिए? यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम या यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। जवाब इनका दुरुस्त है। मदनी काफिलों में सफर करें, ये सारी बातें सीखने को मिलती रहती हैं। बारी सरदाराबाद वालों की है, नंबर पसंद कीजिए। 2, 3, 8 या 9? आपने पसंद किया 2। रोटी अगर दस्तरखान पर आ गई तो क्या सालन का इंतजार करना चाहिए या खाना शुरू कर देना चाहिए? रोटी अगर आप निगाहें नीची किए जवाब देंगे, खाना शुरू कर दें या सालन का इंतजार करें? खाना शुरू कर दें। रोटी अगर दस्तरखान पर आ गई तो सालन का इंतजार किए बगैर खाना शुरू फरमा दीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बलूचिस्तान वालों की बारी है, कोशिश करें गलती ना हो, क्योंकि मुकाबला आप सरदाराबाद वाले लेके आगे जा रहे हैं। नंबर बताइए स्क्रीन पर कौन कौन से बाकी है? 3, 8 या 9? 9 नंबर। 9 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम। इसके क्या माना है? कलाम से पहले सलाम, यानी सलाम बातचीत से पहले है। दोबारा कीजिएगा, क्या कहा आपने? कलाम से पहले सलाम। जी, जवाब इनका दुरुस्त है कि बातचीत से पहले सलाम करना चाहिए। लोग आकर बातचीत शुरू कर देते हैं, पहले सलाम करना चाहिए फिर बातचीत करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक एक सवाल बाकी है, नंबर 1 का फर्क है। यानी अब इन दोनों इस्लामी भाइयों पर इनकी टीम का बोझ है। एक गलती मुकाबले से बाहर कर सकती है और एक सही जवाब मुकाबले को जितवा सकता है। बारी है सरदाराबाद वालों की। जी, नंबर पसंद कीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सिलसिला जनाब। नंबर 8। नंबर 8। जिससे रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम का अज़ीम सही अदा ना हो, उसे क्या पढ़ना चाहिए? सुबहान रब्बियल करीम। उसे सुबहान रब्बियल करीम पढ़ना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी है बलूचिस्तान वालों की। आखिरी नंबर है, आखिरी सवाल, जवाब दीजिए। जो दौलत के बास नमाज तर्क करेगा उसका हशर किसके साथ होगा? उबई बिन खल्फ। आपने कहा उबई बिन खल्फ, उसका हशर कारून के साथ होगा। गलती हो गई है और ये चंद नंबरों से बलूचिस्तान वाले पीछे रह गए। बहुत शानदार मुकाबला किया और आप घबराइए नहीं, आइए आगे आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप फिर मौका मिलेगा आपको, क्योंकि इतना क्लोज मुकाबला हुआ कि फिर आपको इंशाअल्लाह शायद चांस मिल जाएगा। अपनी अपनी जगह पर आइए, क्योंकि पीछे रह जाने वाली टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। आप यहीं खड़े रहे, मैं इंशाअल्लाह हमारे यहाँ हाजरीन के दरमियान भी कुछ कुरानदाजी करनी है। पहली कुरानदाजी जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में हो रही है, जब तक सिलसिला ख़त्म ना हो अपनी जगह बैठे रहेंगे, और वो है 63। आखिर में आता है प्यारे आका की उम्र मुबारक की निस्बत से, मगर वो है 1363। 1363 इस्लामी भाई आगे आइए, मदनी चेक आपका मुंतजिर है इंशाअल्लाह। जनाब दूसरा दीजिएगा बाबू जी। एक और इंशाअल्लाह आपका नाम लिया जा रहा है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में, और ये है मदनी तबर्रुक की कुरानदाजी। जी, आपने दिखाइएगा 1363। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
मदरी चेक दीजिएगा, माशाल्लाह। ये नंबर है, ये भी 41 आखिर में है, ये भी निस्बत वाला नंबर है, और 1341 1341। अगर ये मौजूद है इस्लामी भाई तो तशरीफ लाइए। माशाल्लाह, कितनी मुस्कुराते चेहरे के साथ लब्बैक, आगे आ जाए, आपका मदरी तोहफा आपका इंतजार कर रहा है, माशाल्लाह। आइए देखते हैं आज का मुकाबला जो बहुत थोड़े मार्जिन से, बहुत थोड़े फर्क से खत्म हुआ। फैसलाबाद सरदाराबाद के इस्लामी भाई आगे रहे। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड के किस तरह आज का मुकाबला हुआ। जी, फैसलाबाद मक्की के इस्लामी भाई और बलूचिस्तान मक्की के इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला हुआ। 49 नंबर लिए फैसलाबाद मक्की ने, बलूचिस्तान मक्की ने 46 नंबर लिए। आखिरी कुरानदाजी होनी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में, और इस कुरानदाजी में आपको ये मौका दिया जाएगा कि मकतबतुल मदीना पर जाकर जो भी एक चीज़ लेना चाहें अपनी पसंद की आप ले सकते हैं। चलें जनाब, बापू अब आप पर्ची निकालेंगे। जी, नाम बताइए। 1338 1338 1338 नंबर के अगर इस्लामी भाई हैं तो आ जाएं, वरना फिर हम दूसरी पर्ची निकालते हैं। 1338 नंबर जनाब, 371, ये 1371 1371 सुभान अल्लाह। चले वो चले गए तो आपका नाम आ गया है, आप आगे आ जाएं और मकतबतुल मदीना से अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ले लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बार बार मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाए, इल्म दीन सीखना नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बलूचिस्तान वालों हर लोका से